A rare low altitude basalt plateau has been discovered in the western Ghat of which state? महाराष्ट्र. हाँ. क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? सबको याद है ना? मैंने डिस्कशन किया था. Recently, for the first time, the physicist of which country has provided precise information regarding the superconductivity of mercury? Correct. Very good. Very good. A rare species of duck, greater scoop, duck का species है, has been sighted after a gap of 94 years at Loktak Lake. So where is Loktak? Manipur. हाँ, very good. Which country has become the first in Asia and the second in the world to launch a hydrogen power train? China. China ने artificial sun भी बनाया हुआ है. India's first hydrogen powered train has been announced to be operational on which railway route? Kalka Shimla. हाँ. And who has been appointed as the director of National Health Agency Ayushman Bharat Digital Mission? Praveen Sharma. Who has won the title of Miss Universe 2022? Gabrielle. कहाँ की है? USA. Very good. Which country has acquired the media right of the women's IPL for the next 5 years? 23 से 27 तक. Viacom 18. हाँ. Which company has tied with the Union Bank of India for financing 150 Garuda Krishi Kisan drones under Garuda Aerospace? Which Indian has secured the second position globally in the brand guardianship index? Mukesh Ambani. Where was the first health working group meeting held under G20 chairmanship of India? Health working group meeting कहाँ पे हुआ था? हाँ, केरल. Correct. India's first 3x platform wind turbine generator has been installed in which state? Karnataka. Which submarine of the 5th Kalawadi class was commissioned by the Indian Navy on January? Wagir. हाँ. ना 3 और क्वेश्चन है. Who has been appointed as the new Director General of the Civil Aviation? Director General of Civil Aviation. Bikram Devdutt. United Nations Development Programme has announced to launch the Inclusive Circular Economy project in collaboration with which FMCG company? Hindustan Lever है ना? Now under India's G20 chairmanship, the first meeting of the Business 20 was held in which city of Gandhinagar, Gujarat. Who has honored with the Best Foreign Language Film Award at the 20th Critics? RRR. Okay. हम इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हो रहा है रिकॉर्डिंग. मैम चली गई. नहीं उन्होंने. We will start with ये जनवरी का लास्ट है. 30 क्वेश्चंस करेंगे हम. Who among the following has not been honored with the Padma Vibhushan Award? उसमें से किस not been honored with the Padma Bhushan Award 2023? बोलो इसमें से किसको किसको मिल चुका है? हाँ, कुमार मंगलम बिरला. पद्म भूषण. आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा. नॉट हैज नॉट बीन ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड. पद्म विभूषण पूछ रहा है ना. इंडस्ट्रियलिस्ट कुमार मंगलम बिरला हैज रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड. वहाँ पे विभूषण पूछ रहा है ना. इस बार 106 पीपल हैज बीन ऑनर्ड विद द पद्मा अवार्ड्स. और ये पद्मा अवार्ड्स में कितने टाइप के अवार्ड्स आते हैं? और सबसे हायर ऑनर्ड क्या है? नहीं, भारत रत्न. पहला भारत रत्न किसको मिला था? फर्स्ट टाइम जो मिला था किसको? नहीं. कौन सी ईयर में मिला था? एनी आइडिया? भारत रत्न
भारत रत्न अवार्ड सबसे पहली बार कौन सी ईयर में मिला था? 1954। 1954 में सबसे पहले मिला था सीवी रमन, सी राजगोपालचारी, और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वेरी गुड, उन तीनों को मिला था 1954 में। ठीक है, सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ भी मिला है। किस चीज़ के लिए? रमन इफ़ेक्ट के लिए। रमन इफ़ेक्ट पता है किसी को क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ना है। कब मिला था? हाँ, कब मिला था? 1930 में। हाँ, नहीं, 1930 में मिला है सीवी रमन को नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था, अभी मुझे याद नहीं है कब हुआ था स्टार्ट। नहीं, और ये सी राजगोपालाचारी कौन थे? हाँ हाँ, और लास्ट गवर्नर जनरल भी उनको कह सकते हो आप। और स्वतंत्र भारत के पहले या लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? हाँ, माउंटबेटन। ठीक है। अब इस बार 106 लोगों को पद्म अवार्ड्स मिला है, विच इंक्लूड्स 6 पद्म विभूषण और 9 पद्म भूषण, 91 पद्मश्री अवार्ड्स, जिसमें से 19 वुमेंस को मिला है। ठीक है ना, आप याद रखिएगा। एसआई वगैरह दरोगा के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछते हैं, या बीपीएससी में भी पूछ सकता है कि कितने वुमेंस को मिला है। तो 90 वुमेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस अवार्ड लिस्ट। फॉर्मर यूपी चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव, तबला प्लेयर जाकिर हुसैन, आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी, पोस्थुमोसली मतलब क्या होता है? मरणोपरांत, राइट। एंड फिजिशियन दिलीप महालनोबिस, उनको भी मरणोपरांत। एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस.एम. कृष्णन, इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन श्रीनिवासा वर्धन हैव बीन कन्फर्ड विद द पद्म विभूषण, द कंट्रीज सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। पहला भारत रत्न है, विभूषण इज द सेकेंड हाईएस्ट। ठीक है ना? तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि पहली बार भारत रत्न किसको मिला था और ई ऑप्शन होगा और तीनों का नाम लिखा होगा, तो आप लोग ई ऑप्शन मारिएगा। किसी एक को नहीं मिला था, 3 को मिला था 1954 में। नाउ द फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट वाज कंडक्टेड बिटवीन द स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द आर्मी ऑफ विच कंट्री? ये काफ़ी न्यूज़ में था। डी वाला ऑप्शन है। नहीं, अच्छा, इस बार हमारा 674th रिपब्लिक डे में कौन से कहाँ के प्रेसिडेंट आए थे? इजिप्ट के ना? अभी बता दो, बता दो इसका। ठीक है। सो साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सॉरी, ये एक्सरसाइज है। ये इंडियन आर्मी मतलब थल सेना के बीच में है ना, थल सेना, और इजिप्ट की भी थल सेना के बीच में हमारा ये साइक्लोन फर्स्ट, ये हमारा पहला एडिशन है, इसलिए साइक्लोन फर्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो, ये दिस इज कंडक्टेड इन जैसलमेर राजस्थान। द एक्सरसाइज विच बिगेन ऑन January 14 इन जैसलमेर राजस्थान aims to strengthen defense cooperation between the two countries and the share professional skills। इन सब चीज़ों के लिए एक्सरसाइज होती है। ठीक है, वैसे इतना सब आपको याद रखना नहीं है, यूजुअली सारे एक्सरसाइज का रीज़न यही होता है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा, इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम बताओ। अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है ना। ही वॉज ऑल्सो द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। पिछले साल कौन आए हुए थे हमारे चीफ गेस्ट? कौन थे पिछले साल रिपब्लिक डे में? किसी को आइडिया? कौन? किसने बोला ऑस्ट्रेलिया? नहीं। अच्छा, तुम लोग के लिए होमवर्क है, पिछले 2 साल में कौन थे मुझे बताना। पिछले 72nd एंड 73rd में कौन थे मुझे बताना, पिछले 2 साल का। क्या?
गूगल में पता चल जाएगा, एटलीस्ट इसी बहाने तुम लोग को पता तो चलेगा, है ना। नाउ ये देखो, इन विच स्टेट इज बल्लापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? बल्लापुर, एनी आइडिया? वेस्ट बंगाल? अब तो जाहिर सी बात है, इन्होंने बता दिया। हाँ हाँ हाँ, वही है वही है, वेस्ट बंगाल है। इट इज़ लोकेटेड नियर बोलपुर, शांति निकेतन इन बोलपुर सब डिवीज़न। सब डिवीज़न पढ़ाया था ना आप लोगों को। इन बिहार में कितने सब डिवीज़न हैं? 9। हाँ ठीक है जी, 101 इज सब डिवीज़न, राइट। 9 सर्कल है, हाँ 9 सर्कल है, 101 इज सब डिवीज़न। जब आप लोग एसडीएम बनेंगे तो आप लोग सब डिवीज़न में ही पोस्टेड होंगे, और अगर डीएम बनेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड रहेंगे। तो दोनों ठीक है, ठीक है। नाउ सो ये क्यों न्यूज़ में था? अ डिक्लाइन हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन द नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब क्या होता है? माइग्रेट करके आती है, जैसे कि सर्बिया वगैरह में काफ़ी ठंड पड़ती है तो वो लोग ठंड के मौसम में माइग्रेट करके आ जाती है, ठीक है, इंडिया में। नाउ दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन 1977, ठीक है। द डिक्रीज इन द वाटर लेवल इन द लेक एंड द ग्रोइंग नंबर ऑफ वीड्स, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। वीड्स, नंबर ऑफ वीड्स आर द मेन रीजंस किसके डिक्लाइन के। क्या डिक्लाइन हुआ था? माइग्रेटरी बर्ड्स, उनका, हाँ उनका डिक्लाइन हुआ, मतलब जितने आते थे संख्या में अब वो उतनी संख्या में आ नहीं रहे हैं। देयर आर 3 बिग लेक्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कम एवरी ईयर। तो बल्लापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में। केयर क्या है, कुछ आइडिया? केयर क्या है? विथ विच कंपनी केयर हैज़ लॉन्च्ड शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम इन इंडिया। केयर नॉन एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जो हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली 2 साल से कोई नहीं आया, इसलिए मैंने 2 साल का पूछा। कोविड था, हाँ राइट। अब इसका क्वेश्चन, इसका आंसर बताना, क्या होगा आंसर? HUL। अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसका आंसर HUL था, इसलिए आप लोगों को लग रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। नहीं नहीं, HUL के मैं लिए ना कह रही हूँ, बाकी ऑप्शन बताओ तुम लोग। किसने बोला पेप्सी को? देख लेते हैं। हाँ, तो ये बेसिकली क्या है ना, दिस प्रोग्राम इज एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में ना मोस्टली 50% के आसपास वुमेन्स आर इन्वॉल्व्ड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम विच केयर एंड PepsiCo is running, which will mainly focus on small scale women producers। जो small scale women producers मतलब बताइए, एनी आइडिया? स्मॉल स्केल वुमेन जो छोटे स्तर पे अपना अनाज उगाती हैं उसको कहते हैं स्मॉल स्केल वुमेन प्रोड्यूसर्स। उनको इकट्ठा करके वुमेन मेक अप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एग्रीकल्चर वर्कर इन डेवलपिंग कंट्रीज and work 13 more hours per week than men. Initially, this program will be implemented in कूचबहर डिस्ट्रिक्ट एंड अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। पेप्सिको एंड केयर की सहायता से ये प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं टू एम्पावर वुमेन। छोटे छोटे स्मॉल स्केल पे जो वुमेन्स होती है जो अपना अनाज उगाती है वो सबको इकट्ठा करके एंड देन दे विल सेल देयर ग्रेन्स, किसको? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बेच देती हैं, सो दैट जैसे कि बिस्किट्स बनते हैं, है ना, और क्या क्या बनता है, मैगी बनता है, ब्रेड बनता है। तो ये सब, ये हाँ, ये सबको हम वो लोग एक्वायर करते हैं, प्रोक्योर करते हैं और बड़े बड़े कंपनीज को सेल कर देते हैं, ठीक है। केयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म नहीं है। केयर इज़ एन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ना PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पता है क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आपको पता है? हाँ, फिर आप ही बताओगे क्या है। नहीं नहीं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, हाँ, मोबाइल वगैरह में या फिर PC में आपने ग्रीन कलर का देखा है, एक छोटा सा चिप होता है, हाँ, जिस पे वो
वायर लगा के उसके मदरबोर्ड में भी, हाँ मदरबोर्ड के अंडर होता है, उसको कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आज समझ में आया ना? नहीं तो फिर उस एटलीस्ट कुछ आइडिया तो मिल रहा है ना कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या होता है। ठीक है, नाउ रिसाइकलिंग सेंटर। अब ये सब तो ई वेस्ट हो गया ना, इतने सारे मोबाइल और पीसीज हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, तो ये सारे ई वेस्ट हो गया है। तो बेसिकली क्या है, ये सिर्फ ना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे ही ध्यान देते हैं। रिसाइकलिंग सेंटर विद ए कैपेसिटी ऑफ 1 टन पर डे। 1 टन में कितना किलो होता है? 1 टन में कितना? 100 10 क्विंटल होता है। 1 टन में कितना होता है? ठीक से बताओ, केजी में बताओ। केजी 1000 किलो हो गया, राइट। 1 टन में 1000 किलो है ना? ठीक है। अब recycling center with a capacity of 1 ton per day has been inaugurated at the Center for Material for Electronic Technology CMET located in which state? कौन से स्टेट में? नहीं चार ऑप्शन में तो सारा बोल दिया, कोई एक बताओ, कोई एक ऑप्शन बताओ। हैदराबाद। हाँ करेक्ट, हैदराबाद। हाँ हैदराबाद में होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो ना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उसका रिसाइकलिंग करना है। सर्कुलर इकोनॉमी पता है क्या होता है? सर्कुलर इकोनॉमी उसको बढ़ावा देगी। सर्कुलर इकोनॉमी पता है क्या होता है? हाँ, जब मैन्युफैक्चर करते हैं उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर यूज़ करते हैं, उसके बाद रिसाइकिल करते हैं, रिसाइकलिंग सेक्टर को भेज देते हैं, फिर इसको रिफर्बिश करते हैं। रिफर्बिश मोबाइल का किसने इस्तेमाल किया है? रिफर्बिश मोबाइल क्या होता है पता है? वो लो कॉस्ट में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको फिर से हम लोग रिसाइकिल करके उसको इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट आउट एंड क्रिएटिंग एन ई वेस्ट, वी रीयूटिलाइज दोज अनयूज्ड, मतलब उसको फिर से हम उसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से रिफर्बिश करके उसको दोबारा सेल करते हैं, फिर वो दोबारा कस्टमर के पास आता है, फिर दोबारा कस्टमर उसको यूज़ करते हैं, बट वो प्राइस थोड़ा कम होता है। तो इट्स गुड फॉर इन्वायरमेंट ऑल्सो, गुड फॉर कंज्यूमर ऑल्सो, और गुड फॉर मैन्युफैक्चरर ऑल्सो, कि उसको मटेरियल का कम इस्तेमाल करना पड़ता है तो लेस कॉस्ट पड़ता है उनको। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। ठीक है ना, रिसाइकलिंग यूनिट है ना, कहाँ पे है? हैदराबाद में। वही सब लिखा है, रिसाइकलिंग वगैरह, सर्कुलर इकोनॉमी। ओके, अब ये देखो, ये तुम लोग को पता होगा, ये मैंने पहले भी पढ़ाया है। हाँ, इन विच कंट्री द इनॉग्रल एडिशन ऑफ बायलैटरल एयर, बायलैटरल मतलब दो कंट्रियों के बीच में, एंड मल्टीलैटरल मतलब बहुत सारी हाँ, तो वीर गार्जियन किसके बीच में होता है? इंडिया एंड, हाँ इंडिया एंड जापान, करेक्ट। सो ये इंडिया और जापान के बीच में हम बायलैटरल एक्सरसाइज करते हैं। देयर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सी हियर, धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री एक्सरसाइज हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मिलिट्री एक्सरसाइज को, हाँ सैन्य। ये थल सेना बेसिकली, नेवी जल है ना, जल सेना के साथ जेमेक्स करते हैं, और थल सेना के साथ धर्मा गार्जियन, एंड सिन्यू मैत्री एयरफोर्स, वायुसेना, एंड मालाबार भी करते हैं। मालाबार ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, इंडिया एंड जापान। मालाबार एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया एंड जापान, ये चारों के बीच में मालाबार एक्सरसाइज होती है। ठीक है, और जापान के साथ कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है? धर्मा गार्जियन, जेमेक्स, सैन्य मैत्री और वीर गार्जियन। ठीक है ना? आप लोग को क्वाड के बारे में पता है? हाँ, क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज है? क्वाड में 4 कंट्रीज हैं। हाँ, कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया, हाँ, इंडिया। अच्छा, अब बस अब आप लोग बताइए। 2 आपने बताया, 2 कोई और बताएगा? यूएसए है, किसने बोला? यूएसए और किसने बोला? जापान। बस तो कम आ रहे हो। यूएसए है, आप बताओ पूरा चारों कंट्री का नाम, फिर से बताओ। ऑस्ट्रेलिया है, हाँ, इंडिया है, हाँ, अमेरिका है, हाँ,
जापान है। तो कोई पूछेगा क्वाड कंट्रीज़ में, अभी तो क्वाड के ऊपर बहुत सारा मतलब काफ़ी न्यूज़ में रहता है, उसके ऊपर तो पूरा एक लेक्चर डिलीवर किया जा सकता है, बट फॉर द टाइम बीइंग क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं, है ना। क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 कंट्रीज़ हैं। वो क्यों स्थापना हुआ था, क्यों क्वाड कंट्रीज़ बनाया गया था, उसके ऊपर पूरा एक राइटअप है। मैं कभी आप लोग को बता दूंगी, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका आंसर इंग्लैंड। किसका? तुमने देख लिया। इंडिया डिफीटेड होम टू विन द आईसीसी अंडर 19 T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल। हाँ, किसको डिफीट किया था? करेक्ट, इंग्लैंड को डिफीट किया था। इन द फाइनल मैच प्लेड ऑन जनवरी 29, 2023 कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। और इंग्लैंड को डिफीट किया था। ये इंडियन कैप्टन शेफाली शर्मा वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बाउल फर्स्ट। ठीक है। द इंग्लैंड टीम बैटिंग फर्स्ट स्कोर 68 रन। खैर ये स्कोरिंग वगैरह तो पूछेगा नहीं, सो वी विल प्रोसीड अहेड। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। हु हैज़ वन मेन सिंगल्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? कौन? आप आंसर दिख गया? हाँ, सो ही हैज़ वन। अच्छा, कितना टेनिस में ग्रैंड स्लैम होता है, किसी को कुछ आइडिया है? टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 22? नहीं, अच्छा पहले इसको करवा देती हूँ। सर्बिया, ये नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं। ये क्वेश्चंस एकदम आते हैं ना, तो वो कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। हैज़ वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन फॉर द रिकॉर्ड 10th टाइम। ही वन द टाइटल बाय डिफीटिंग ग्रीक प्लेयर स्टेफानोस सिसिपास 6-3। ये इतने से हराया है, उतना उसको याद ही रखना है। विद दिस विक्ट्री ही हैज़ इक्वल्ड राफेल नडाल्स रिकॉर्ड ऑफ विनिंग द मोस्ट ग्रैंड स्लैम। ठीक है, राफेल नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम जीता है। और जोकोविक हैज़ वन 7 विम्बलडन। ये कितना जीता है, सो हाँ ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन राफेल नडाल एंड हाँ उन लोग का टाई चल रहा है। और कितने टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 होते हैं बेसिकली। आप लोगों ने पढ़ा, अभी ऑस्ट्रेलियन, अभी और पढ़ाऊंगी तो आपको दिखेगा। ऑस्ट्रेलियन होते हैं, फ्रेंच और विम्बलडन एंड यूएस, है ना। 4 होते हैं। आप लोग को नो आइडिया? नो आइडिया। यस, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, उसमें से लोगों को जीतना हर मैच में, उन लोगों को मतलब दे विन दे आर द विनर्स। तो 4 टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच ग्रैंड स्लैम, यूएस और विम्बलडन। तो विम्बलडन कहाँ है, कौन सी कंट्री में है? इंग्लैंड में है। एंड दिस इज़ द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम। सबसे पहले विम्बलडन से स्टार्ट हुआ था 1877 से। ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम खेला जाता है जनवरी और फरवरी के महीने में, वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और यूएस ग्रैंड स्लैम भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। विम्बलडन ग्रैंड स्लैम होता है ना, वो घास पे खेला जाता है। तो यूएस और ऑस्ट्रेलियन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, विम्बलडन घास पे खेला जाता है। और फ्रेंच जो होते हैं, फ्रेंच ग्रैंड स्लैम, वो खेला जाता है मिट्टी, क्ले पे। ठीक है ना। आप लोग और तैयारी करोगे तो आप लोग को ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना है, पूछता है। ठीक है ना। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। ठीक है, देखो अभी मैंने क्या पढ़ाया था, ऊपर मैंने क्या पढ़ाया है, ये ऑस्ट्रेलियन का मेंस का पढ़ाया है। आई थिंक ये वुमेन का है, और आगे भी क्वेश्चंस आएंगे। हु हैज़ वन वुमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ, ये पहचानते हैं कौन है? नहीं, एनी गेस, ये कौन चारों में से? एनी गेस? सबलिंका। अरेना सबलिंका ऑफ बेलारूस डिफीटेड एलेना लेब्रिंका ऑफ कजाकिस्तान। ठीक है, इतने से। क्या नाम, इसका आंसर बताना। इस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड वुमेन में किसने जीता है? और किसको हरा के? अरेना,
अरेना सेबलेंका बेलारूस की है, ठीक है ना, बेलारूस की है। अब मुगल गार्डन के बारे में किसी को आइडिया है? मुगल गार्डन किसी ने विजिट किया है मुगल गार्डन? हाँ, जो राष्ट्रपति भवन के अंदर है, उनका नाम बदल दिया गया है। यस मैम। क्या नाम रखा गया है? तो कहाँ लोकेटेड है मुगल गार्डन? राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में है। हाँ, तो हो तो गया इसका आंसर, ठीक है, न्यू दिल्ली। बिली गिररंगा हिल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में लोकेटेड है? केरल। लुक एट द सिनेरियो, लुक एट द, कितना कितना सुंदर है। केरल नहीं हो सकता है, बोलो बोलो। यू हैव केरल, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। क्यों न्यूज में है? साइंटिस्ट एट द अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हैव डिस्कवर्ड a न्यू स्पीसीज ऑफ वॉस्प। वॉस्प वो जो मक्खी टाइप होता है ना, हाँ, हड्डा, ये, हाँ वो मक्खी, हाँ ठीक है। हैव डिस्कवर्ड न्यू स्पीसीज ऑफ वास्प नेम्ड आफ्टर द सोलिंगा ट्राइब फ्रॉम द बिलगिरी रंगन हिल्स इन, कहाँ पे है? चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। दिस इज द ओरिजिनल ट्राइब लिविंग इन द पेरिफेरल फॉरेस्ट एरिया। पेरिफेरल मतलब सराउंडिंग में जो रहते हैं, ठीक है। मेल महादेश्वर सोलिंगा आई कर्नाटक इज अ न्यू स्पीसीज ऑफ वास्प बिलोंगिंग टू द सैफ फैमिली। सैफ फैमिली मेटोपिना, ये सैफ फैमिली ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। तो वास्प ये, सो बिलगिरा रंगा कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटका में, ठीक है। आज के सेशन थोड़े वन लाइनर ही हो रहे हैं, कुछ खास कॉन्सेप्ट बेस है नहीं, ठीक है। हु हैज़ बीन स्worn इन द एज द 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सा? क्रिस हेपकिंस, पढ़ा था न्यूज़ में। और न्यूजीलैंड की राजधानी बताओ। यो पढ़ लिया पर न्यूजीलैंड का राजधानी नहीं पढ़ा, बताओ। अच्छा, ऑप्शन में टिक लगा दोगे? डब्ल्यू से, अब बताओ। हाँ सो न्यूजीलैंड की राजधानी, हाँ, क्रिस हेपकिंस। कौन सा? ये न्यूजीलैंड के लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। ही हैज़ स्worn एज द 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। आपको ये भी याद रखना है, 41st। Who has been named the ICC Men's T20 Cricketer of the Year 2022? कौन सा? सूर्य कुमार यादव, मतलब फोटो में फर्स्ट वन। ये सूर्य कुमार यादव, पक्का लॉक कर दें? करेक्ट, सूर्य कुमार। इंडिया सूर्य कुमार यादव played 31st international matches in the year 2022 in which he scored total 1164 runs at the average of 46.56, ठीक है। ये सब तो स्ट्राइक रेट जो उन्होंने मारा है, तो बेसिकली हमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, ठीक है। अब बताओ, हु हैज़ बीन नेम्ड एज आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये कौन सा है? कौन सा? स्मृति मंधाना तुम्हारी कौन फेवरेट है? तहिला मैग्रो। कौन? स्मृति मंधाना किसकी फेवरेट है? अच्छा, देखते हो मैचेस, देखते हो उनके? या शी इज़ वेरी गुड। सो क्या है आंसर इसका? तहिला मैग्रो। ऑस्ट्रेलिया's तहिला मैग्राथ हैज़ रिसीव द बेस्ट वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। ये ऑस्ट्रेलिया की है ना? कौन? तहिला मैग्रा। हाँ, शी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया।
Who has been conferred with the Sir Garfield Sobers Trophy ICC Men's Cricketer of the Year 2022? पाकिस्तान तो कौन? अच्छा, यहाँ से देख रहे हो तुम लोग? बाबर आजम, बाबर आजम। अब मुगल्स भी सिलेबस में नहीं है ना? अब आप लोग को नहीं पढ़ना पड़ेगा। हटा दिया है। काश हमारे मैथमेटिक्स का भी रिलेशन मुगल के साथ होता तो उसको भी हटा दिया जाए। मुगल्स के बारे में हाँ हाँ, कुछ पार्ट हटाया गया है, पूरा नहीं हटाया है। हाँ, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में अभी भी पूछा जाएगा, है ना? क्योंकि उसके बारे में कोई न्यूज़ अभी तक आया नहीं है, बस एनसीईआरटी से हटाया गया है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं बोलो, कैमरा में आ रहा है, अभी नहीं बोलो। Who has been conferred with ICC Test Cricketer of the year 2022? कितने दिनों में खेला जाता है टेस्ट क्रिकेट? कितने दिन में खेला जाता है? 5 दिन में। देखो, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया। ये लड़कियों इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में? अच्छा, आप बोल रही हैं नो मैम। सो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? बेन स्टोक्स। हाँ, बेन स्टोक। कहाँ बेन स्टोक? कहाँ, किसके? इसने पहले बोला न्यूजीलैंड। Who won the men's single title in Indian Open Badminton Championship 2023? देखा था आप लोगों ने ये मैच? ये मैच अच्छा न्यूज़ में देखा था? हाँ। अच्छा, तो ये थाईलैंड शटलर, थाईलैंड इंडिया ओपन बैडमिंटन Who has won the हाँ, तो ये थाईलैंड की भी जीत सकते हैं ना, कोई जरूरी है कि इंडिया नहीं जीते, है ना? तो नाम क्या है? कुनलावुत विदिदर्शन, थाईलैंड के हैं, ठीक है। ही हैज़ वन द इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, थाईलैंड के हैं। क्या नाम बताए, क्या नाम है? कुनलावुत विदिदर्शन। Who won the women's single title in the India's Open Badminton Championship 2000? इसमें बताइए। ये सी होगा क्योंकि फेस से लग रहा है। फेस से क्या लग रहा है? कहाँ की है? साउथ कोरिया की है। साउथ कोरिया की है। क्या नाम है? एन सेंग यंग। एन सेंग यंग। हाँ, ये साउथ कोरिया की है। She has won women's single title in India Open Badminton Championship, है ना? क्या नाम है? येनसेंग यंग। साउथ कोरिया में जाना, वहाँ के यूथ बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, ऐसा कहा जाता है। साउथ, हाँ, प्लास्टिक सर्जरी। और प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन कहाँ हुआ था? इंडिया में। हाँ, सुश्रुत, हाँ, उन्होंने इन्वेंट किया था। बट सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी होता है साउथ कोरिया में। एंड वी हैव अ कल्चरल टाइप विद द साउथ कोरिया। कहा जाता है कि हाँ, कि रामायण के साथ हमारा कल्चरल रिलेशन है इंडिया और साउथ कोरिया का। अच्छा, आपको वाह, पहले क्वेश्चन तो देख लो। Which Indo-US astronaut has been nominated for the appointment to the rank of Army Brigadier General in the US Air Force? क्या किसने बोला? कमलेश गोपालन। श्योर? नहीं, बिल्कुल राजा जेचारी। हाँ, इनका करंट अफेयर बहुत अच्छा है। This has been announced by the US President Joe Biden. Brigadier General is and one star general officer rank in the United States Air Force, ठीक है।
सो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड, क्या नाम है? राजा जे चारी। अच्छा, यूएस के स्पेस एजेंसी का क्या नाम बताया था? नासा का फुल फॉर्म बताना, मैंने बताया था। नेशनल हाँ, कब इनॉग्रेशन, कब इसका फाउंडेशन? 1959। और इंडिया का 19 भूल गए? अब तुम लोग इसको याद करके आओगे। मैंने कितनी 3-4 बारी मैंने बताया है। Which Indian has been elected as the corresponding member of the Academy of Letters of Brazil? क्या नाम है? बताओ। न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तुम लोग आजकल? आई एम श्योर तुम सारे लोग पढ़ते हो। नहीं तो बैकलॉग हो गया है। मोबाइल पे पढ़ लिया करो, मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके पढ़ लिया करो, इन केस अगर ट्रैवल करते हो बसेस में या फिर ऑटो में। क्या नाम है इसका बताओ? क्योंकि ऑप्शन दिख रहा था। हाँ, अभय कुमार। द एकेडमी ऑफ लेटर्स ऑफ ब्राज़ील हैज़ इलेक्टेड पोएट डिप्लोमेट अभय कुमार एज अ कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ द एकेडमी ऑफ लेटर्स ऑफ ब्राज़ील। ठीक है ना? अभय कुमार। बहुत जल्दी आज खत्म हो जाएगा तुम्हारा करंट अफेयर। विच स्टेट्स tableau has won the first prize in the 74th Republic Day parade on कर्तव्य पथ इन दिल्ली? कर्तव्य पथ का नाम पहले क्या नाम था? एनी आइडिया? हाँ, उसका नाम बदल के इसी बार से क्या है आंसर इसका? उत्तराखंड। द थीम टाइटल ऑफ द उत्तराखंड टैब्लू इंक्लूडेड इन द 74th रिपब्लिक डे पैरेड 26 जनवरी 2020 वाज क्या है? मांसखंड अंडर मंदिर माला मिशन। ठीक है ना? महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश टू सेकेंड एंड द थर्ड रिस्पेक्टिवली। पहला कौन था? दूसरा एंड तीसरा उत्तर प्रदेश। हाँ, अब ये देखो। इन विच सिटी द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 conference was organized by the Union Ministry of Health and Family Welfare? बताओ कौन सा, क्या होगा आंसर इसका? वाराणसी। और नहीं बताओ कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश a 2-day national health ministers conference on universal health coverage day 2020 concluded in Varanasi in December 2022. उत्तर प्रदेश गवर्नर कौन है? उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल inaugurated the conference. Union Minister of Health and Family Welfare डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया कौन है? ये मिनिस्टर हैं। Who has won their maiden Grand Slam title by defeating Sania Mirza and Rohan Bopanna in the mixed doubles final of Australian Open 2023? कौन है ये? एनी आइडिया? डी होगा? नहीं पढ़ा ना? राफेल मतोस, ल्यूसिस स्टेफी एंड राफेल मतोस। ठीक है ना? द इंडियन पेयर ऑफ सानिया मिर्जा एंड रोहन बोपाना फिनिश सेकंड इन द फाइनल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन। मैम थोड़ा पॉज कीजिएगा, कॉल आ रहा है। लूसिना स्टेफानी एंड राफेल मतोस। ठीक है ना? FIH का फुल फॉर्म बताओ? फेडरेशन। हाँ, which team won the FIH Hockey World Cup 2023? World Cup 2023 FIH कौन है? कौन वर्ल्ड कप जीता है? जर्मनी। चेहरे से लग रहा था। इन द फाइनल एट द कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर। कहाँ है कलिंगा स्टेडियम? ओडिशा, भुवनेश्वर। जर्मनी डिफीटेड बेल्जियम। हाँ, 5 पेनल्टी शूट आउट टू बिकम द हॉकी वर्ल्ड चैंपियन। कौन बने चैंपियन? जर्मनी। किसको हराया?
बेल्जियम को, ठीक है ना। सो जर्मनी डिफीटेड बेल्जियम। अगर ये जल्दी कर लेंगे तो हम दूसरा बिहार का करंट अफेयर कर लेंगे, ठीक है ना, बिहार का कर लेंगे। क्यों क्यों ऊपर से चला जाएगा? आप लोग 30 ही क्वेश्चन रहे, ये रहेंगे 30 क्वेश्चन, वो रहेंगे 60 क्वेश्चन, क्या मैम? है ना, कर लेंगे हम लोग बिहार करंट अफेयर, थोड़ा सा कर लेंगे, ठीक है। मुझे पता था कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं उसका भी प्रिपेयर करके आई हूँ। सो हाउ मेनी आइलैंड इन द अंडमान निकोबार आइलैंड हैव बीन नेम्ड आफ्टर द परमवीर चक्र विनर्स? 21। सब एक, हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेम्ड 21 लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आफ्टर द परमवीर चक्र विनर्स ऑन द ओकेजन ऑफ पराक्रम दिवस, ठीक है ना, 21। सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, कौन है विक्रम बत्रा? ये विक्रम बत्रा कोड है। हाँ। In which state was the military exercise AMPHX 2023 organized? In which state? कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ था एम्फेक्स 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज? हाँ, आंध्र प्रदेश। इंडियन नेवी कंडक्टेड a joint military exercise AMPHEX 2023 with Indian Army and Indian Air Force near काकीनाडा in आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। Who is the author of the book India's Knowledge Supremacy, The New Dawn? हाँ, नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। The book was released globally by India's Education Minister धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान है कौन? एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है ना, एट द इवेंट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर। सो हु इज द ऑथर? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। कौन सा बुक लिखा था उन्होंने? Indian knowledge supremacy, the new law. हाँ, The New Dawn। Okay, which state's disaster management authority has been selected for the Subhash Chandra Bose आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023? उड़ीसा, वही आता है हमेशा। हाँ, उड़ीसा। द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार was instituted in 2022 to honor the effort of the individual and organization in the field of disaster management. उड़ीसा। प्रसार भारती has been recently signed an MOU. MOU का फुल फॉर्म क्या है? ऑफ अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट, ठीक है। MOU विद द नेशनल मीडिया अथॉरिटी ऑफ विच कंट्री टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ कंटेंट? कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है इन्होंने MOU? किसके साथ? पीछे अब बताओ, अब अभी भी बताओ। इजिप्ट है। The MOU were exchanged in the presence of Prime Minister Modi and Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi in New Delhi, ठीक है ना। Last question. In which city the first India Stock Developer Conference was held? Which city? हाँ? New Delhi. हाँ, the first India Stock Developer Conference has been organized to focus on ways and means to ensure wider adoption of India's digital goods across the globe in New Delhi on 25th January 2023. इसमें the India's stock is a multi-layered set of digital solution. The India stock मतलब क्या होता है? जिसमें एक सारे जिसमें UPI भी आ जाती है, कोविन, ये सारा डिजी लॉकर, जितने भी ऐप्स आते हैं ना, वो सारा उस सबको इकट्ठा करके उसको हम कहते हैं इंडिया स्टॉक। ठीक, समझ में आया ना कि इंडिया स्टॉक क्या होता है? उसमें सारे आ जाते हैं, डिजी लॉकर, UPI, हम लोग ई आधार, कोविन क्या है? कोविन क्या? हाँ, ये पोर्टल था जो देखता था कि कितने लोग वैक्सीनेट हुआ है, कितना कोविड के केसेस आ रहे हैं। ठीक है।